One who is able to withdraw his senses from sense object, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Purport. The taste of the yogi, devotee, or self realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servant of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi situated. The senses are compared to a venomous serpent. They want to act very loosely or according or without restriction. The yogi or devotees must be very strong to control the serpents like the snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scripture. Some of them are do's and some of them are don'ts. Unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from the sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. समझ में आ रहा है? The best example set herein the tortoise. The tortoise can at any moment wind up his senses and exhibit them again at the time of particular purpose. Similarly, the senses of the Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of tortoise who keeps the senses within. Very important, very important verse. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome everybody for today's morning class. So this verse comes in the final section of second chapter of Bhagavad Gita, which explain the characteristic of Sthita Pragya devotee. Sthita Pragya devotee uh, means a devotee who is transcendentally situated, a devotee who is always situated in Krishna consciousness. So, whose consciousness is steady, whose consciousness is fixed in the spiritual platform. He is called Sthita Pragya Vyakti.
Sthitapragya devotee. So Arjuna was asking question. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि समाधिस्तस्य केशव स्थिताधि किं प्रभाषेत किम आशीत व्रजेत किम. Arjuna said, O Krishna, what is the symptom of one whose consciousness is thus merged in transcendent? What is the symptom of that person? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है? Whose consciousness is thus merged in transcendent. How does he speak? वो कैसे बात करते हैं? What is his language? उनकी भाषा क्या है? How does he sit? And how does he walk? कैसे चलते हैं? तो इस प्रकार अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं जो सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों की लक्षण किस प्रकार होना चाहिए, भक्तों को कैसे बातें करना चाहिए, भक्तों को कैसे चलना चाहिए, भक्तों को किस चेतना में रहना चाहिए। और जब अलग-अलग परिस्थिति आते हैं हमारे सामने, तो हमें किस प्रकार उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और उससे समझ सकते हैं भक्ति के मार्ग में कितना आगे बढ़े हैं। एक तो हमारा एक्सटर्नल प्रैक्टिस है, लेकिन एक्सटर्नल प्रैक्टिस जो है that should produce the transcendental quality within ourselves. तो और उसी प्रकार हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अलग-अलग अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, वो हमारी चेतना को शुद्ध स्तर में लेके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत साल भक्ति करने के बाद भी हमारी चेतना भौतिक स्तर में ही बना रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या बोलते हैं, बरजात्री का उदाहरण देते हैं। बरजात्री मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? जो ब्राइड के तरफ से जो जाते हैं ना, हस्बैंड की तरफ से जाते हैं वाइफ के घर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक बार शादी बारी में जा रहे थे बरजात्री समझते ना? बाराती। तो जा रहे थे और वो लोग नाव में चढ़े हैं, बोट में चढ़े हैं और अगले मतलब उनको पहुंचना था, ठीक है, शाम को चढ़े हैं और उनको पहुंचना था, नदी के उस पार जाना था लड़की के घर में शादी के लिए। और नाव चल रहा है, अरे पूरा रात बीत गया, सुबह हो गया। और सुबह देखा कि उधर ही है वो लोग। अरे क्या हुआ? शादी का क्या बोलते हैं, मुहूर्त बीत गया। हम लोग जाने वाले थे उधर, क्या हुआ, नहीं पहुंच पाए। तो बोला कि अरे आपने तो आपका जो एंकर है, बोट का जो एंकर है, उसको उठाया ही नहीं आपने। तो आपने अगर एंकर नहीं उठाया तो गाड़ी कैसे चल आगे जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग हमारे अलग-अलग प्रकार के जो इंद्रियों के विषय के साथ जो अटैचमेंट है, उसको अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा भक्ति का हमारी चेतना शुद्ध स्तर में नहीं आएगा। हम लोग शुद्ध स्तर में हमारी चेतना को कृष्ण भावना के स्तर में लेके नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं। तो इधर इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं कि हाउ डज ही स्पीक। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है, जो वो कैसे बोलते हैं, अर्थात जब अलग-अलग परिस्थिति उदय होता है, अलग-अलग परिस्थिति सामने आता है, हाउ ही रिएक्ट, हाउ डज ही स्पीक मीन्स हाउ ही रिएक्ट, हाउ डज ही स्पीक मीन्स how does he react when different type of
favorable and unfavorable situation comes. And Prabhupada is writing the purpose. That is the taste. That is the taste of a yogi. That is the taste of a yogi, your self-realized soul, how he reacts in that particular situation. उस परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते, वो आपका टेस्ट है कि आप भक्ति में या आध्यात्मिक मार्ग में कितना आगे बढ़ा है. तो तो प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बता ही दिए एक्चुअली. कोई कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है. प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं कि एक योगी और भक्त की परीक्षा है कि वो किस प्रकार अपने इंद्रियों को और अपने मन को अलग अलग परिस्थिति में अपने इच्छा के अनुसार उसको काबू में ला सकता है. अपने इच्छा के अनुसार उसको काबू में ला सकता है. तो वो एक भक्त या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो वो परीक्षा है. तो ज्यादातर लोग इस दुनिया में इंद्र की सेवक हैं और इंद्र के जो अलग अलग प्रकार के जो विषय होता है, उस विषय का जब अटैक होता है, इंद्र के अलग अलग जो वेग होता है, उस वेग का जब अटैक होता है तो तब क्या होता है, इस जो भौतिक स्तर में रह रहे हैं लोग, जो भौतिक चेतना में जड़ स्तर में हैं, they are not able to control their mind and senses, and they just follow the dictation of the senses. इंद्र विषय के जो आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित होके उसके द्वारा बह जाते हैं. तो कृष्ण इधर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्र के विषय से विड्रॉ कर सकता है, इंद्र के विषय से वापस ला सकते हैं. इंद्र के विषय रहेगा हमेशा, उससे अपने इंद्रिय और विषय को वापस ला सकता है. और वापस ला सकते हैं जिस प्रकार टॉर्टोइस जो कछुआ होता है, तो कछुआ अपने सारे इंद्रियों को जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो अपने इंद्रियों को क्या करते हैं, उस शेल के अंदर घुसा लेता है. तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्र के जो विषय होता है, इंद्र की भोग की विषय होता है, उससे वापस लेके आ सकता है, वो स्थित प्रज्ञ है. उनके बुद्धि और उनके मन जो है, उनके जो मन है ये उस दिव्य चेतना में या कृष्ण चेतना में स्थिर है बोल के माना जा सकता है, जो वापस ला सकता है. तो भौतिकवादी व्यक्ति जब इंद्र के विषय का उपस्थित होता है, या इंद्र के वेग, अलग अलग प्रकार की वेग या इंद्र के विषय आके उपस्थित होता है, तो अपने इंद्रियों को सही नहीं कर पाते हैं और इंद्रिय भोग में या इंद्र के विषय में लिप्त हो जाते हैं. अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति है, जो हमें हमारे कृष्ण भक्ति के बाधक है, उसमें लिप्त हो जाते हैं. तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति की इंद्रियों को विषैला सर्प के साथ तुलना किया गया है. विषैला सर्प के साथ तुलना किया गया है. तो विषैला सर्प क्या होता है, अगर आपको डांसेगा तो क्या होगा, खत्म.
उसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति जिनको कोई अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के इंद्रिय उनके मृत्यु का कारण बनता है। इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मछली होता है, हाँ, मछली क्या करते हैं, वो पानी में बहुत खाना मिल जाता है, लेकिन जब फिशरमैन आता है, हाँ, जब माछ पकड़ने वाला आदमी होता है, वो क्या करते हैं, एक हाँ, वो ये फेंकता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुछ फूड फेंकता है, हाँ, खाना फेंकता है, और उसको बहुत उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और जब उसको खाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उसको उसका जीवन चला जाता है। तो इस प्रकार जीवा को नियंत्रण नहीं करने के कारण मछली अपना जीवन दे देता है। उसी प्रकार हाथी कैसे पकड़ा जाता है पता है? हाथी, सर्कस का हाथी, कैसे उसको पकड़ा जाता है? तो सर्कस के हाथी को क्या किया जाता है, वो एक हाथी को पकड़ने के लिए एक दूसरा स्त्री हाथी लेके आ जाता है। तो स्त्री हाथी को लेके आया जाता है, और फिर क्या करते हैं, वो लोग एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं, पहले से गड्ढा खोद के रखते हैं, और स्त्री हाथी को ट्रेनिंग दिया रहता है पहले से, हाँ, वो पहले उसको पकड़ा गया है तो उसको ट्रेनिंग दिया रहता है। तो गड्ढा खोदा गया है और गड्ढे को ना अच्छे से घास से भर दिया जाता है, अच्छे से भर दिया जाता है, और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम उधर से दौड़ के आएगा, और दौड़ के आने के बाद ये जो गड्ढा है, गड्ढा के सामने से साइड से निकल जाना। तो अभी जो पुरुष हाथी होता है, मेल एलिफेंट, ही इज मैड आफ्टर फीमेल एलिफेंट, so that male elephant want to enjoy female elephant, and when male elephant is attracted to female elephant, so female elephant run towards that gadda and when gadda comes, then he just go side of the gadda, and the male elephant is so mad, he does not care what is there in the front, and he want to go shortcut because he want to catch quickly that she elephant. समझ में आ रहा है? हाँ, शॉर्टकट जाने के प्रयास करते हैं जब, देन द क्या बोलते हैं, मेल एलिफेंट फॉल in the big gadda, and then people comes immediately, and then because he cannot come out from that gadda, तो उसको रस्सी से पकड़ के उसको लेके फिर उसको खाचा के अंदर भर देते हैं, फिर उसको बहुत दिन नहीं खिलाया जाता है, और इस प्रकार वो एकदम दुर्बल हो जाता है, और फिर उसको खाने के लिए जो बोलते हैं उसको वही करते हैं, और इस प्रकार उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते करते वो पूरे सर्कस के एलिफेंट बन जाते हैं। जो उनका पूरे जो राज्य था, पूरे फॉरेस्ट जिसमें वो एंजॉय कर सकता था, वो पूरी एंजॉय उसको उनके हाथ जीवन से चला जाता है, और सर्कस का एलिफेंट बन जाता है। सब उसको मजाक करते हैं, सब उसको देखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय एक अनियंत्रित इंद्रिय, अनकंट्रोल्ड सेंसेस इज लाइक ए वेनोमस serpent, and it become a cause of a death of every soul, even for a yogi. Even for a yogi who is trying to control his senses. So Hari Bol. So the senses become the uncontrolled senses become the cause of his death. You know many stories how Vishwamitra Muni was doing tapasya for 60,000 years, and just the sound of the ankle bell of Menaka, Vishwamitra Muni gave up his meditation. So it is very, very important to conquer the senses, or to withdraw the senses. When the attraction or the allurement of the sense object comes, it will come.
We are not in the spiritual world, we are in the material world, and that is also in the city practicing Krishna consciousness. So therefore, if you don't learn the art of withdrawing the senses from the sense object, that is intelligent. आज के जमाने में सिखाया जाता है, eat, drink and be merry, enjoy, भरपूर एंजॉय करो. वही आज के जमाना में का एजुकेशन है, वही आज के जमाना का साइकोलॉजी है, स्पेशली फॉर द यूथ्स और होल सोसाइटी. तो लोगों को लगता है कि ज्यादा एंजॉय करेंगे तो दैट इज सक्सेस. बट मोर यू एंजॉय और more you become entangled, more you become slave, more you loses your independence, more you remain in the pull of birth and death. जन्म मृत्यु के जो चक्र हैं उसमें हम लोग पड़े रहेंगे. तो इसलिए एक योगी को या एक भक्त को किस प्रकार इंद्रियों को संयम करना चाहिए, इंद्रियों के विषय से वापस लाना चाहिए. लाएंगे कहाँ लाएंगे? कहाँ लाएंगे? जिधर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, जिधर आपको प्यूरिफिकेशन मिलेगा, जिधर आपको शेल्टर मिलेगा. तो वो दिव्य चेतना में, वो है कृष्ण चेतना. जब आप कृष्ण चेतना में वापस लाना चाहिए, कृष्ण चेतना में जब वापस लाएंगे तो तब क्या होगा? आपके मन सुरक्षित रहेगा, आपकी इंद्रिय सुरक्षित रहेगा. तो इस संदर्भ में स्नेक चार्मर का एग्जांपल, स्नेक चार्मर इज वेरी एक्सपर्ट टू कंट्रोल द snake, or snake charmer is very intelligent. He breaks the poisonous teeth of the snake. So uncontrolled senses is like a venomous serpent. But when you practice Krishna consciousness, especially the process which is given by Lord Chaitanya महाप्रभु के दिया हुआ जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, अगर उसका पालन करेंगे तो जो विषधर सर्प जो है, विषैला सर्प जो है, इसका जो विष दांत जो होता है वो टूट जाता है. दूसरे ओर जब आप भगवान के भक्ति करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है. चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम. हमारे हृदय पवित्र होता है, हमारे मन पवित्र होता है. तो भगवान की कथा जब हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान में जब हम लोग तब भगवान की कथा जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारे मन, हमारे हृदय शुद्ध होता है. और तब क्या होता है? मन भगवान के चरणों में स्थिर होता है. चिन्नतां स कथा कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरेत सताम. When you hear about the Supreme Lord, when you hear Srimad Bhagavatam, Shinnata sa katha Krishnam, कृष्ण की कथा जब श्रवण करते, पुण्य श्रवण कीर्तनम, that is the most auspicious activity. और what happened by that? हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि. Whatever abhadra, contamination, impurities are there, vidhunoti, that become purified. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Nashtaprayeshu abhadreshu, destroyed all abhadreshu, abhadra. How? Nityam bhagavata seva, by hearing Srimad Bhagavatam every day. So why you are hearing every day in voice? To destroy or to destroy the contamination, impurities, to cleanse our heart. So by regularly chanting and hearing, our heart gets purified. And when our heart gets purified, senses naturally
follow the dictation of Krishna. Senses naturally get attracted to Krishna. तो इस प्रकार जो स्नेक्स चार्मर होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी भी सांप को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार एक भक्त कभी भी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ते। चल मोबाइल के जिस जिस चैनल में जाना है चले जा, इंटरनेट में जिधर घुसना है घुस जा, और इधर पूरे बाहर में जितने भी बिलबोर्ड्स होता है जिधर जितना है देख। मन जो चीज सोच रहा है ठीक है, सोचने दे, क्या प्रॉब्लम है, मन में ही तो हो रहा है। तो मन बहुत शैतान है। मन आपको अलग अलग प्रकार से, मन क्या है, माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल अनफुलफिल्ड डिजायर। स्टोर हाउस है, अनफुलफिल्ड डिजायर का स्टोर हाउस है। इंद्र की सारी इच्छा मन के अंदर जमा हुआ है। तो अगर आप अपने इंद्रियों को, मन को छोड़ के रखेंगे, तो क्या होगा, मन जो है जैसे जैसे स्पॉन्ज के जैसा है। स्पॉन्ज में जो भी चीज देंगे एब्सॉर्ब कर लेगा। मन एक बच्चे के जैसा है, कुछ भी चीज में हाथ लगा देगा। आग हो, स्टूल हो, फैन हो, है कि नहीं। मन को कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन पावर किनका है, बुद्धि का है। तो इससे बुद्धि से मन जब अलग अलग गलत जगह में जाते हैं, इंद्र के विषय के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसको वापस लेना चाहिए, विथड्रॉ करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति के प्रतिकूल है, मेरे कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, मेरे मृत्यु का कारण बन जाएगा, मैं फॉल डाउन हो जाऊंगा भक्ति से। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए योगी को, भक्त को बहुत सतर्क होना चाहिए मन और इंद्रियों को विथड्रॉ कर, इंद्र के विषय से विथड्रॉ करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम डूज एंड डोंट्स, जम एंड नियम। Just like a diseased person, doctor gives some restriction, some do's and some don'ts. Similarly, for a yogi or for a practicing devotee, there is some do's and don'ts. Unless we follow or abide those do's and don'ts, there is no question of spiritual progress. There is no question of uplifting our consciousness. And therefore, we have to be very, very sincere to abide by those rules and regulations and become obedient to the instruction given by the Supreme Lord or instruction given by spiritual master. Very, very important. We should not think ourselves independent. We should always remember that we are accountable to our spiritual master and Krishna. Today's world teaches us how to remain independent, unaccountable. But everybody has to give the answer. Here, yogis are giving answer to the dictation of the senses. How they are giving answer? Like tortoise. So Krishna is giving the example of tortoise to teach us. Don't allow your senses to remain in the different false attraction of the sense object. आँख के अलग अलग विषय है, कान के अलग अलग विषय है, जीवा के अलग अलग विषय है, हमारे जो अलग अलग इंद्रिय हैं, इंद्र के अलग अलग विषय हैं। तो इसलिए जिस प्रकार जो टॉर्टॉइस होते हैं, कछुआ होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होते हैं तो क्या करते हो,
बहुत सतर्कता के साथ अपने जो इंद्रिय हैं उसको शेल के अंदर घुसा लेते हैं। और उसी प्रकार जो भक्त होते हैं, जब इंद्र के विषय के प्रतिकूल परिस्थिति होता है, भक्ति के प्रतिकूल, हाँ, इंद्र के भोग के अलग अलग विषय होता है, हाँ, मोबाइल फोन, इंटरनेट, या फीमेल कनेक्शन, जब आप ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, को एजुकेशन है, बहुत लोग बहुत कुछ ऑफर दे सकते हैं। तो इस प्रकार या आप अलग अलग जगह में जाएंगे, आपके दोस्तों के साथ, दोस्त लोग बोले नॉन वेज ऑफर करेंगे आपको, स्मोकिंग करने के लिए बोलेंगे, अलग अलग प्रकार की इंटॉक्सिकेशन करने के लिए बोलेंगे, अगर आप नहीं लेंगे सबके सामने आपका मजाक उड़ाएंगे। उस परिस्थिति में मन को नियंत्रित करना, हाँ, एक लड़का था, वो पूरे जीवन में उन्होंने नशा नहीं किया, एकदम थोड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड से है, हाँ, और जब ऑफिस से क्या बोलते हैं, उस ऑफिस से वो ऑफिस में काम करता था और बहुत 4-5 साल उन्होंने बहुत फेथफुली काम किया। अभी उसका ट्रांसफर हो रहा है, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर है तो उसको फेयरवेल दिया, और फेयरवेल में उसको वाइन ऑफर किया, फेयरवेल में उसको वाइन ऑफर किया, और वो सोचा कि अरे इतने लोगों के सामने मैं अगर नहीं लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा इमेज खराब होगा। इमेज कैसे अच्छा होता है? दारू पीने से, सबके सामने। तो जो व्यक्ति दुर्बल प्रकृति के हैं, जो व्यक्ति की चेतना स्थित नहीं है, कृष्ण भावना में स्थिर नहीं है, तो वो इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्रपोजल, लोगों की फोर्स, लोगों की तथाकथित जो प्रपोजल्स हैं, और इंद्र के विषय के अलग अलग अट्रैक्शन है, उसके द्वारा वो दिख जाते हैं। पी लिया उसने, तो इसलिए हमारे मन को हमेशा कृष्ण में स्थिर रखना चाहिए। अगर आपने मन को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में स्थिर रखेंगे, तो क्या होगा, मन इंद्र के विषय में नहीं जाएगा। इस प्रकार टॉर्टॉइस क्या करते हैं, जब इंद्र के उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो अपने इंद्रियों को शेल के अंदर घुसा लेता है, और जब अनुकूल परिस्थिति होता है तो क्या होता है, अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से खोल देता है। उसी प्रकार अगर हम लोग हमारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में एंगेज रखेंगे, कान से कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करेंगे, मन से भगवान को भगवान के चरणों में या भगवान की सेवा में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में चिंतन करेंगे, जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान के वाणी का प्रचार करेंगे, भगवान को अर्पण किया हुआ भगवान की प्रसाद खाएंगे, पैर से भगवान के मंदिर का परिक्रमा करेंगे, भगवान के सामने नृत्य करेंगे, नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूल और तुलसी का घ्राण लेंगे, कान से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार अगर हमारे सेंसेस को कृष्ण के सेवा में एम्प्लॉय करेंगे, unengaged senses will be dictated by the allurement of Maya। लेकिन अगर हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में एम्प्लॉय करेंगे, एंगेज रखेंगे, तो क्या होगा, इंद्रिय हमेशा संतुष्ट रहेगा, इंद्रिय हमेशा
शुद्ध रहेगा, मन और इंद्रिया। और इस प्रकार ये जो कछुआ का उदाहरण दिया गया है, तो कछुआ जिस प्रकार इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से विड्रॉ करते हैं, और और आ, योगियों को उस प्रकार करना चाहिए। और आप जैसे और अनुकूल परिस्थिति होता है तो अपने इंद्रियों को खोल देता है, उसी प्रकार योगियों को अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज रखना चाहिए, ऑल द टाइम एंगेज रखना चाहिए। तो अगर हम लोग एंगेज रखेंगे तो हमें ऊंचा स्वाद मिलेगा। अगर आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा, नेचुरली नीचा स्वाद आप परित्याग करेंगे। उसके अगले श्लोक में भगवान वही चीज बोलते हैं, विषयानुनिवर्तन्ते निराहारस्स देहिनाम रसवर्जम रसह्यप्स्य परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रिय के विषय को परित्याग करने के बाद भी इंद्रियों के विषय के प्रति एक व्यक्ति के भूख रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग बैड हैबिट्स में फंसा हुआ है, जब उसको छोड़ देता है लेकिन फिर भी उसको उसके प्रति लगाव रह जाता है, इच्छा बना रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऊंचा साध प्राप्त करते हैं, रसो वर्जम रसो ही अपस्य, जब कोई उसको हायर टेस्ट मिलता है तो रसो वर्जम लोअर टेस्ट छोड़ देता है, परम दृष्टा निवर्तते, और उनको उस दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए it is very important to sincerely practicing Krishna consciousness day to day life, to revive our relationship with Krishna, not just for the sake of sense control. Our goal is to re-establish our relationship with Krishna, to develop love for Krishna. We are actually looking for that love. We are actually looking for that love, and originally we have that love for Krishna. Jive Swarupa Krishna Nitya, that love is there, but now it is covered by lust. And therefore the senses are getting attracted to the sense object. So you have to be very determined and sincere to revive that love, not get misdirected by the lust. And therefore we should always keep Krishna in our mind. Krishna is our goal. To serve Krishna, to satisfy Krishna, to love Krishna. In this material world, everybody is selfish. Nobody loves others. Everybody, whatever relationships are based on selfishness. Some agendas are there. And even there is some love in material platform. Those relationships are temporary. But our relationship with Krishna is permanent, eternal, selfless. And we should try to develop that love for Krishna. Today is the day, Ekadasi, where we can sincerely express our love by giving our heartfelt endeavor to practicing Krishna consciousness. How Krishna will understand that you love him? When you express your sincere endeavor by practicing the different process limbs of bhakti. If you're sleeping in the morning time, if you're not chanting regularly, if you're not practicing the different process of bhakti, if you're not reading and chanting, then how Krishna will understand? What is the symptom you want to love Krishna? Bhakti is not some mental thing. Bhakti means devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. So whatever services we are getting in voice, everything is an opportunity to develop love for Krishna, or everything is an opportunity to express your love for Krishna. Whatever service, प्रभु जी है मेरे को उनको दीजिए. That is not the sign of love. So
So it is very important that we develop higher taste, and when we develop higher taste by regularly hearing and chanting, naturally we develop love for Krishna. And when our mind gets purified, fixed up in Krishna, and when the uh, allurement or attack of the senses or sense object comes, we will be having sufficient strength to withdraw. That strength comes by practicing Krishna consciousness. That strength comes by association of steady devotee. That strength comes by association of stronger devotee. If you're not associating with the devotees, if you're staying alone, naturally there is a chance to be victimized. So association of devotees is very important, is a protection. एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, इन द एसोसिएशन हम लोग भक्ति बेटर कर सकते हैं, भक्ति स्टेडीली कर सकते हैं, एंड देन यू बिकम स्ट्रांग, एंड you're not attracted, you're not even not disturbed, you know it is useless. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भक्ति को सिंसियरली करें, और भक्ति में जो डूज एंड डोंट्स हैं, अगर डूज करेंगे लेकिन डोंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तभी आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए भक्ति का जो विधि निषेध है प्राथमिक स्तर में, उसको बहुत अच्छे से पालन करना जरूरी है. और इस प्रकार अगर आप कृष्ण भक्ति में आप एंगेज रहेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है सुबह मॉर्निंग सैंडविच, morning spiritual, evening spiritual, and daytime you have college or you are going for work. But if your morning is going without Krishna consciousness, evening going out without Krishna consciousness, and you are busy in working and studying, then there is a great chance, to be victimized by the object of the senses. And therefore we have to take protection, vaccine. So Hare Krishna Mahamantra is a vaccine. Hearing and chanting is a vaccine. Antidote, क्या बोलते हैं? Yes. Then when you are going out, you will not get affected, because you have developed your immune system. अगर आप सुबह अच्छे से आप जप नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो अट्रैक्टेड होंगे. इम्यून सिस्टम डेवलप करिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I am not there all the time here, neither somebody can be there all the time. You have to be sincere by yourself. Externally you have to be accountable, and internally we have to be accountable. What I am doing, we should check ourselves, we should question ourselves. What I am doing, what I am thinking, how I am utilizing my time. And every day, that's what sadhana card has been given. That's what our sadhana report sending has is a rule, because you can check that today how you have utilized your time. कितना घंटा सेवा किया, कितना चैंटिंग किया, चैंटिंग कैसा रहा आपका, रीडिंग किया कि नहीं, हियरिंग किया कि नहीं, कुछ सेवा किया कि नहीं. चेक योरसेल्फ. और ऐसे फैसिलिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसा सिस्टम, ऐसा मूड अब किधर भी नहीं मिलेगा आपको. ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं, इवन इस्कॉन में भी बहुत जगह में नहीं मिलेगा आपको. तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको अगर सिंसियरली नहीं लेंगे, टाइम विल गो. टाइम इज लाइक अ रिवर, विल गो वेरी फास्ट. आपको पता ही नहीं चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल कैसे बीत गया है. और आप देखेंगे कि 4 साल बीत गए और मैंने भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं. इसलिए जितने दिन आप वॉइस में हैं, इसका अपॉर्चुनिटीज को सीरियसली लीजिए, भक्तों के संग का सीरियसली लीजिए, एंड देन फ्यूचर यू विल बी वेरी स्टडी डिवोटी. You know how to lead your spiritual life. Okay, thank you very much. So
we should also pray to the Lord that Lord always protects us from the onslaught of Maya. And sincere devotee always pray. That is the sign of his desire to practice Krishna consciousness more sincerely. कोई प्रश्न है किसी का, ऑनलाइन और ऑफलाइन? किसी का कोई प्रश्न है? लोगों में किसी का प्रश्न है? अच्छा होना पड़ता है, हम लोग अट्रैक्ट होना, उस तरह हमें याद नहीं आता है कि हम ये नहीं करना चाहिए, गलत है, और हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या ऐसा कुछ सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बोलते ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हाँ, prevention is better than cure. So if you take care of your Krishna consciousness, so in that particular time you will get sufficient strength to withdraw. Okay, this is the main solution. समझ में आया? उस परिस्थिति में आपको 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 नेचुरली इंटेलिजेंट इंडिकेशन दे देगा दिस इज रॉन्ग. जैसे होता है ना, और एक वो इसमें जाते तो रेड सिग्नल देता है, टैं टू करके बजता है, तो ऐसे आपके सेंसेस सिग्नल दे देगा रॉन्ग है. अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में सही तरीके से ट्रेंड अप होंगे, आपको समझ में आ जाएगा रॉन्ग है, 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 क्योंकि वो ट्रेनिंग बिल्डअप हुआ है आपके सिस्टम में. सिस्टम मीन्स आवर इंटेलिजेंस, आवर माइंड, आवर सेंसेस, आवर थॉट्स. समझ रहे हैं? यस, इट्स अ ट्रेनिंग. We are trained for many lifetimes for enjoy sense gratification. Now we have to train ourselves, train our mind and senses to serve Krishna. समझ में आ रहा है? बहुत जन्मों से हम लोग भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, इंद्र की सेवा करते 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 करते, वो इनबिल्ट है अभी. समझ रहे हैं ना? तभी आपको फिर से उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर से उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और इसलिए वॉइस ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हम जैसे आप बोलते थे कि ज्यादा टाइम हम मतलब कुछ ज्यादा कुछ कर दिया तो तुम्हें घर के तरफ से आवाज नहीं गया तो फिर उस सब कुछ सुन के फिर मैंने करना बंद कर देता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर माया हावी हो जाती है. तो फिर ओके, सो विल डिस्कस. हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑनलाइन में किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण ब्रो. हाँ ब्रो, बोलो. ब्रो आपने वो जो स्नेक और हरिनाम का जो एक्सप्लेन किया था ना, एग्जांपल दिया था, तो फिर एक बार बताएंगे क्या? वो स्नेक का पॉइजन और हरिनाम के बीच जो रिलेशन है, वो आपने जो एग्जांपल दिया था, तो फिर एक बार बताएंगे क्या? मैं बोला था, द्रौपदी जी बोलते तात्पर्य में कि uncontrolled senses is like a venomous serpent, and the venomous serpent is the cause of death. Similarly, the uncontrolled senses became the cause of death. I have given the example of elephant, male elephant, and I have given the example of fish. So similarly, for a yogi, if he does not learn to withdraw his senses, then sense object become, or senses become the cause of his spiritual death. His spiritual death. So now what is the solution? Solution is snake charmer is very expert to control the snakes, and how he control the snakes. यस, एक पॉइंट एक्चुअली मैंने मिस किया था, वो आपने क्वेश्चन पूछ के बोल दिया. स्नेक चार्मर को, स्नेक को कैसे कंट्रोल करते हैं? मंत्र से. दो तरीके से कंट्रोल करते हैं.
एक मंत्र से और एक उसका दांत जो है, जो विषैला दांत है, उसको तोड़ देते हैं। तो similarly we have to be very sincere to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Not full chanting, chant like a fool. So we should chant consciously. So then the holy name will purify your your mind and senses, which is like a venomous serpent. So the snake charmer, the control the snakes by mantra, and snake charmer brings out, pulls out the poisonous teeth. So snake is there, but poison is not there. Similarly, senses are there, but poison is not there. And with that senses, you serve Krishna. Senses have some activity. You cannot stop the activity of the senses. You cannot stop seeing. नहीं देखेंगे. Yes. So you have to purify your consciousness by hearing, by chanting, by seeing the beautiful form of Radha Govindji, Jagannath Baladev, Subhadra Maharani. After taking darshan, when you goes out, you should have, आपको बोलना चाहिए कि भगवान का ड्रेस क्या था, क्या कलर पहने थे भगवान। इधर तो एक ही ड्रेस है, लेकिन जब मंदिर में दर्शन करने के लिए तो बहुत बार पूछ ले, तो भक्त को बोल ही नहीं सकते क्या ड्रेस पहना, क्या याद ही नहीं आता है। मतलब वो सीरियसली नहीं दर्शन कर रहे हैं। कौन सा फूल का गार्डन था, यस, सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग बहुत कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन भक्ति बहुत अनकॉन्शियसली हो जाती है। तो एक होता है कि जो बाय चैंटिंग सिंसियरली, बाय हियरिंग मंत्रा प्यूरिफाइज द माइंड। मंत्रायतेति मंत्रा, जो मन को परित्राण करते हैं उसको कहते हैं मंत्रा, और ये महामंत्र है। और दूसरा है, आप भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा करिए, इंद्रियों को भगवान के अलग अलग प्रकार की सेवा में एंगेज रखिए, तो क्या होगा, इंद्र के जो विषैला दांत है वो टूट जाएगा। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, उनके इंद्रिय की सारे 20 दांत टूट जाता है, और उनके लिए सारे कठिन काम आसान हो जाता है। और जो चैतन्य महाप्रभु की चिंता नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, सब आसान चीज कठिन हो जाता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं। विश्वम पूर्ण सुखायते, दुर्दैवम इंद्रियो कालो सर्प पटोली प्रख्यात दंष्ट्रायते। दुर्दैव इंद्र कालो सर्प पटोली, दुर्दैव इंद्र जो है, जो विषैला सर्प के जैसा है, प्रख्यात दंष्ट्रायते, उनके 20 दांत टूट जाता है। और विश्वम पूर्ण सुखायते, और ऐसे भक्तों के लिए पूरे विश्व जो दुख का जगह है, सुखमय प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह में भगवान को दर्शन करते हैं, या हर वस्तु को भगवान के कनेक्शन में दर्शन करते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है, भक्ति में आने के बाद मेरी दृष्टि चेंज हो गया। तो पहले जिस तरीके से देखते थे, सोचते थे, अभी पूरा चेंज हो गया मन में, क्योंकि इस फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी की फिलोसफी।
कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलोसफी। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण ही एक्चुअल ट्रूथ है, कृष्ण ही सब कुछ के सोर्स है। So naturally think about Krishna. Why I become fool thinking about the false reality. Correct? So Krishna is the real object. Therefore we worship Krishna. Therefore we chant Krishna's name. Therefore we dedicate our life for Krishna because he is the highest truth. Yes? Krishna is the highest truth. So you have to be intellectually convinced at least. And then you execute, you practice sincerely. Then you realize that. समझ रहे हैं? So that realization comes by sincere practice. तो इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बोलते हैं, विधि महेंद्रादि किटायते कोई बल्ल नरकायते। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति का आस्वादन करते हैं उनके लिए मुक्ति नरक जाने के जैसा है। कोई बोलो नरकायते विधि महेंद्रादि किटायते, और वो ब्रह्मा के पद प्राप्त करना, इंद्र के पद प्राप्त करना कीड़ा बनने की समान है। विश्वम पूर्ण सुखायते, चैतन्य महाप्रभु जो शुद्ध भक्ति दिया है उतना श्रेष्ठ है कि उसके पास ब्रह्मा बनना, इंद्र बनना, मुक्ति प्राप्त करना तुच्छ है। भक्ति इतना श्रेष्ठ है। तो और भी बहुत सारा चीज बोलते हैं। Okay, so yeah, we are very late. So thank you all very much for joining. Rohini Kumar Pu, হরে কৃষ্ণ ব্রো। তো আমি কি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি? হ্যাঁ ব্রো। জানি না আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, তো আপনি পেয়েছেন প্রশ্নের উত্তর কি? হ্যাঁ ব্রো প্লিজ। ওকে, অ্যাকচুয়ালি আপনি কোশ্চেনটা করে ভালো করেছেন, আমি একটা পয়েন্ট মিস করে গেছিলাম। स्नेक चार मार की करे स्नेक, तो मंत्र मैंने मिस कर गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हरि बोल, शिला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।